I am going to discuss about the weightage of strength of materials in the PGCET 2019 examination. As I already covered all these topics in strength of materials, and when I analyzed, this was the whole paper analysis for strength of materials. From the very first chapter, stress, strain and thermal stresses, they have asked question for 4 marks. And in that 4 marks, there was 1 mark theory question and 3 mark numerical question. And there were 2 questions for 1 marks and 1 question from 2 marks. Okay, so you just need to verify that which topic you should consider more for PGCET 2019. And there was a 2 mark question from SFD and BMD, and both questions were theoretical in 1 marks question. And there was not a direct question of bending, but of course there was a linkage of this bending concept with columns. And in columns they have asked a 2 mark question directly, a 2 mark numerical, and in that numerical both concept of column and bending was involved. So I can say that purely it's not had been asked from bending of beams, but of course the merging was there between both these topics. Now talking about shear, so from shear there was 1 mark question, and that 1 mark was the theoretical one. From twisting there was 4 marks question, and the theoretical question belongs to only 1 marks, and numerical they had asked for 3 marks, where 2 questions were of 1 marks and 1 question was of 2 marks. Okay, now from this topic, this is a very favorite topic, but in 2019 they had asked only 1 mark question, and that too was numerical. In columns, of course, I already told you that the question came by the merger of this particular topic. Pressure vessels, they had asked 1 question, and that too was numerical. And from the theory of failures, they had asked 1 mark question, and that too was theoretical. So if I can say that what was the total weightage of SOM, so it was 16 marks, and out of your 75 questions, how many questions were there? When you will add up overall 16 marks in your whole weightage, so you can say that this is a very high weightage subject. And from the analysis, they had touched each and every part of the topics of SOM. So each and every topic is in very important. You cannot say that I will study only these 3 or 4 topics and it will get cleared. No. Okay, this is a very scoring subject, and you cannot leave a single topic from this particular subject. Okay, so let's discuss those questions that has been appeared in PGCET 2019. Okay, discussing the very first question which appeared for SOM, and that is, according to Tresca's yield locus is a, so there was 4 options: circle, parabola, rectangle, hexagon. So of course it is an hexagon. ठीक है, पूरा का पूरा मैंने पूरा फुल टेबल बना दिया था, उसमें सिर्फ यही नहीं और भी 4-5 डिटेल्स मैंने क्या दिए थे, उन 5 थ्योरीज के बारे में दी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्जनल रिजिडिटी. टॉर्जनल रिजिडिटी, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्जनल स्टिफनेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्जनल रिजिडिटी. और वो भी मैंने बताया था कि टॉर्जन और बेंडिंग में आओगे तो देखो रिजिडिटी का क्या हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाता है, और यहीं पे लोग क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं. सो जो टॉर्जनल स्टिफनेस होता है वो होता है GJ/L. दिस इज नोन एज टॉर्जनल स्टिफनेस. ओके, और इसकी यूनिट में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, और GJ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे दे रखा है टॉर्जनल रिजिडिटी. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए, टॉर्जनल रिजिडिटी. ठीक है, अब बात आती है कि सर G का यूनिट किस में होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और J किस में होता है, mm पे पावर 4, या फिर मैं नॉर्मली मीटर पे पावर 4 लिख देता हूँ, या फिर अगर किसी को मन नहीं है तो यहाँ mm कर लो, यहाँ पे भी क्या mm पे पावर 4 कर लो. ठीक है, सो 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, सो इट विल बी न्यूटन mm स्क्वायर, और नहीं मन हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो. न्यूटन का मतलब क्या होता है सर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर. अगर इसको MLT के फॉर्मेट में लिखोगे तो kg को m लिख लो, l क्या हो जाएगा m और m स्क्वायर, l पावर 3, और ये टाइम को क्या लिख दोगे तुम,
टी पे पावर -2। तो एक ऐसा ऑप्शन था, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन वाज ओनली देयर, ml टू द पावर ml टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ठीक है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ दिस gj अपॉन l। अगर ऐसा कुछ करोगे वो ऑप्शन भी क्या है इसमें मेंशन्ड है, एंड दैट ऑप्शन विल बी ml स्क्वायर t -2। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बाय मिस्टेक आंसर्ड दैट ऑप्शन, बट ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे लौंडे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज में कि कब स्टिफनेस लेना है, कब रिजिडिटी लेना है। ठीक है, पूरे वीडियो लेक्चर में इन सब से रिलेटेड मैंने तीनों टाइप ऑफ लोडिंग्स के लिए क्या बता दिया था, मैंने ट्रिक बता दिया था, सो दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। ठीक है, चलिए 10th, वर्टिकल फॉल इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोज। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको वर्टिकल फॉल देखने को मिल रहा है, तो मैंने देखो इसमें भी बताया था कि अगर आप एसएफडी ड्रॉ करते हैं और वहां पर आपको एकदम से कहीं वर्टिकल फॉल देखने को मिलता है, तो व्हाट हैपेंस कि वहां पर एक पॉइंट शियर लोड डला हुआ है। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला था कि बीएमडी में ही क्या होगा, अगर कोई बेंडिंग कपल एक्ट हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जहां पर आपका बेंडिंग कपल एक्ट करेगा वहां पर आपको एक वर्टिकल फॉल या वर्टिकल राइज देखने को मिलेगा। सो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई बेंडिंग कपल अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही चाहिए होगा। मैं कोई एक्सियल लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम या टॉर्सनल लोडिंग डायग्राम में नहीं देखूंगा, मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ही देखूंगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट बेंडिंग लोड। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन था कि यूडीएल ऑन द बीम, नहीं यूडीएल से क्या फर्क पड़ता है, यूडीएल तो शियर फोर्स की तरह एक्ट करता है और वो एसएफडी में उसका इफेक्ट दिखेगा। एक्शन ऑफ अ कपल एट द बीम, दिस विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे भी कौन सा कपल, बेंडिंग कपल। कपल भी बहुत टाइप के हो सकते हैं ना, बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल, बट यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन बेंडिंग मोमेंट के बारे में दे रखा है तो ऑप्शंस भी किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करोगे, बेंडिंग कपल के रिस्पेक्ट में। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग क्या आते हैं, अपोज करने आ जाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये सारे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी एक्शन ऑफ कपल एट द बीम। ठीक है, उस पॉइंट पे ही क्या होगा, अगर कोई बेंडिंग कपल एक्ट हुआ होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वहां पर क्या दिख जाएगा, आपको एक वर्टिकल लाइन दिख जाएगा उसी लोकेशन पर। ठीक है, next, the bulk modulus of elasticity of a material is twice its modulus of rigidity. The Poisson's ratio of the material is, उसने क्या बोला है, उसने एक रिलेशन दिया है बल्क मॉडुलस और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में, और उसने पूछ क्या लिया है, व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम लोग थोड़े क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर वो सोचते हैं कि सर हम कैसे ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो देखो यार, फॉर सच क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं सीधा सीधा एक तुम्हें क्या बोलता हूँ, इसमें एक रिलेशन आपको मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ, एंड दैट टू रिलेशन इज E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ये चीज तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखो B और G में दे रखा था तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले E कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करने का। E क्यों कैलकुलेट करने का, जब इधर से E निकाल के उधर पुट ही करना है तो क्यों निकालें। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि E क्या हो जाए, कैंसिल ही हो जाए। सो बहुत शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये चीज तो आपको पता होगी ऑलरेडी। सो मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, सीधा सीधा क्या कर लो, डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1, 1 हो जाएगा इस तरफ, और इट विल बी 2G 1 प्लस म्यू अपॉन 3K 1 माइनस म्यू। मन है तो इसको इधर लेके चले जाओ, इट विल बी 3K अपॉन 2G, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। K की वैल्यू यहाँ पर कुछ दे रखी है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस को ही हम लोग क्या मानते हैं, K मानते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा, जैसे मानना है मान लो। इसको 2G रखोगे तो 2G और G क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 3, और इसको जब आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी, ऐसा कुछ आ रहा था, आई थिंक 4/14 करके कुछ आंसर आ रहा था, एंड दैट विल बी बिकम 2/7। ठीक है, तो ये बस नॉर्मली क्या करना है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या है इसमें आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द मोहर सर्कल, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर। सो दे हैड गिवन यू दैट द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ऑफ अ स्ट्रेस of a strained element is 20 Newton per mm square. Okay, for the radius of a Mohr circle. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, जहां पर मुझे क्या करना है,
मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसने रेडियस दे रखा है, एंड द माइनर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब मेरे लौंडे आएंगे तो सही में थूक देंगे इस क्वेश्चन पर, ये सब पता नहीं क्या दे रखा है, और लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। उसने देखो जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, मतलब अपना जो सर्कल का सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड दैट वैल्यू इज 10। और उन्होंने ये जो रेडियस का वैल्यू दे रखा है, वो रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 20 दे रखा है। अगर रेडियस इतना है तो डायामीटर कितना हो जाएगा सर, दिस डायामीटर विल बी नाउ 40। और उसने क्या पूछ लिया है कि बता दो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है। यहाँ पे क्या करने लगते हैं लोग, पता नहीं वो बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं, ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में साफ साफ बताया था, और जो ऑफलाइन भी आते हैं उनको भी साफ साफ बताया था, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूला से करो ही मत। Wherever you will find the solution, they did all the solution with respect to formula. But मैं बोलता हूँ फॉर्मूला लगाने का ही नहीं है। यहाँ पर कितना स्ट्रेस आ जाएगा, that too will be 10 प्लस 20 into 2, ये कितना है 40। डायरेक्ट आंसर 50 मेगापास्कल, कुछ करने का ही नहीं है। ये 1 मार्क्स के लायक ही क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था, ठीक है। सो ये तो रहा एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने 1 मार्क्स में पूछा है, अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क T which produces a maximum shear stress tau in the shaft, the diameter of the shaft is। मैंने हमेशा आपको बताया है कि देखो यार, जब आप टॉर्जन इक्वेशन यूज में लोगे तो आप मैक्सिमम ही फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। बहुत कम लोग ये चीज बताएंगे आपको, ठीक है, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है उस चीज में भी क्या करते हैं, वो इंटरनली चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट वो चीज भी मैंने रिलेशन आपको डिराइव कर दी थी कि क्यों वो इन बिटवीन फाइंड आउट करते हैं, और वो मैनिपुलेटेड इक्वेशन यूज में लेते हैं और आपको वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बट लीव दैट, अभी के लिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, जो टाउ मैक्स कैलकुलेट करना था, टाउ मैक्स का सिंपली फॉर्मूला होता है 16T/πd³, यही होता है। उसने बोला कि व्हाट इज द डायमीटर, तो डायमीटर को आप इधर लेके जाइए, दिस विल बिकम d³ एंड दैट विल बी 16T/π इनटू टाउ मैक्सिमम, और यहाँ से क्यूब को हटाओगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, एंड डायरेक्ट आंसर आपका क्या दे रखा था, यही दे रखा था। तो देयर वाज वन ऑफ द ऑप्शन that is 16T/πt and there was a cube root, okay. There was 2 more options where there was only square roots, so you just need to consider that you must cancel all those options where square root has been given, okay. Now the next question they had asked from pressure vessels, and that too from thick pressure vessels. In general we study the thin pressure vessels, okay, and we had studied all the formulas related to thin pressure vessels, but this time they had asked you the question from thick pressure vessel. So no need to worry, the formulas are very very easy, and that too I had already told you in all the videos, okay. A cast iron cylinder of internal diameter and 250 mm and 50 mm thickness, okay. Now what they told, that internal diameter is 250 mm, okay, so don't be confused, and thickness they had given. So what happens, sometimes students consider this 50 mm as internal diameter. No, that is not the right thing. हो जाता है जल्दी जल्दी में, I consider, but ठीक है। इसको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, मैं फटाफट डेटा एक बार लिख देता हूँ। उन्होंने इंटरनल डाया दे रखा है, इंटरनल डाया 250 mm दे रखा है, और थिकनेस 50 mm दे रखा है। तो आउटर डायामीटर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ थिकनेस जोड़ोगे तो इट विल बिकम 350 mm, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो दिस इज आउटर डायामीटर एंड इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 12। देखो प्रेशर ना भी देता ना तो चल जाता, बताऊंगा क्यों। इसने इतना प्रेशर दे रखा है, दैट इज 12 मेगापास्कल एक तरह से। उसके बाद रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस टू मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस विल बी। तो देखो यार, मैं बहुत नॉर्मल सी एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस का, सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू एक्चुअली पी इंटू r0 होल स्क्वायर प्लस r इंटरनल होल स्क्वायर अपॉन r आउटर होल स्क्वायर माइनस r इंटरनल होल स्क्वायर। एंड ये जो मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है
2p ri होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहता है r नॉट होल स्क्वायर माइनस ri होल स्क्वायर. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर टेकिंग द रेशियो व्हाट विल हैपन सर, सिग्मा t मैक्सिमम अपॉन सिग्मा t मिनिमम, व्हाट विल हैपन, दिस डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड आउट, दिस p एंड p विल नाउ बी गेट्स कैंसल्ड आउट. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ये p नहीं भी देता तो मैं कर लेता, क्योंकि रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा. एब्सोल्यूट वैल्यूज चेंज कर सकती हैं p की वजह से, बट रेशियो तो कभी चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए. और जब आप इसको लिखोगे तो इट विल बिकम r नॉट होल स्क्वायर प्लस ri होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ri होल स्क्वायर. अब देखो यार, यहाँ पे चाहे आप रेशियो है तो चाहे आप रेडियस का रेशियो लो चाहे डायामीटर का रेशियो लो, बात क्या है आज भी बराबर ही है. तो अगर आप डायामीटर भी पुट कर दोगे ना तो आंसर वही का वही आएगा. ठीक है, सो नाउ आई एम जस्ट पुटिंग दीज वैल्यूज. आर नॉट, मैं आर नॉट ही कर देता हूँ ना. इसका आर नॉट कितना हो जाएगा 175 होल स्क्वायर प्लस आर इंटरनल कितना हो जाएगा, इट विल बी 125 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 125 होल स्क्वायर. मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, हाफ कॉमन ले लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. एक तरह से एलसीएम समझ लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि देखो ऑप्शन इसमें है ना, आपको दे रखा था डेसिमल्स में नहीं दे रखा था, आपको रेशनल नंबर में दे रखा है. सो मैं कैलकुलेटर से करूंगा तो इट विल बी समवेयर यू नो प्रॉब्लमेटिक टू अस. सो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता हूँ. 175 बाई 125 होल स्क्वायर और प्लस 125 स्क्वायर अपॉन 125 स्क्वायर 1 हो जाएगा. सर देखो हाफ ये पहले ही बाहर ले लिया, इस हाफ से कंफ्यूज मत होना. ठीक है, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा सर, 125 से कितने टाइम्स में जाता है, 5 टाइम्स. तो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स. 7 बाई 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, इट विल बी 49 अपॉन 25 प्लस 1. और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 25 जैसे इसमें ऐड करोगे इट विल बिकम 25 49 74 और 74 बाई 2 कितना हो जाएगा 37. सो इट विल बी 37 बाई 25. और ऐसा ही एक ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है. ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछ रखा था सॉम से. ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस. So the very next question that was asked was, shear span is defined as the zone where the very first option was bending moment is constant, shear force is constant, shear force is 0 और bending moment is 0. देखो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम SFD ड्रॉ करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि किसी एक सेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है, shear force कांस्टेंट रह जाता है. ठीक है, और shear force कांस्टेंट कब रहता है, ध्यान में रखो, मैंने आपको बताया था द स्लोप ऑफ shear force इज इक्वल टू योर पॉइंट लोड. वहां पर अगर कुछ पॉइंट लोड है तो ठीक है, जो ऊपर से आप लोड लगा रहे हो उसके बारे में बता रहा था. तो अगर आपका क्या है shear force, अगर आपका SFD आपका कांस्टेंट है तो व्हाट विल हैपन, इट्स स्लोप विल बी 0 एंड इफ इट्स स्लोप विल बी 0 दिस मींस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लोडिंग देयर. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि तो वो सेक्शन जहां पर आपका बीच में कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं होगा, कोई shear लोडिंग नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका shear स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, SFD कांस्टेंट हो जाएगा एंड दैट पोर्शन इज नोन एज shear span. ठीक है, तो your correct option is shear force is constant for this particular question. Next, the question was the percentage of carbon in standard structural steel is. देखो यार, स्ट्रक्चरल स्टील का जो मेन एप्लीकेशन है वो इसलिए लिया जाता है कि इट इज हैविंग द हाईएस्ट डक्टिलिटी. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कार्बन परसेंटेज आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो दो प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है. इट विल बिकम मोर हार्डर, सो इट्स हार्डनेस विल इंक्रीज एंड साइमल्टेनियसली इसका भाई कौन सा था, ब्रिटलनेस. सो ब्रिटलनेस भी क्या करेगा, साइमल्टेनियसली इट विल इंक्रीज. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका जो एंटी होता है, जैसे इंडिया का अपोजिट चाइना, वैसे या फिर इंडिया का अपोजिट पाकिस्तान, वैसे ही हार्डनेस का अपोजिट तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रिटलनेस. डक्टिलिटी ध्यान में रखो, सिमिलरली तुम्हारा डक्टिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा. और आपका जो मेलिएबिलिटी है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा.
ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, बस ध्यान में रखने का है। तो कार्बन यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील, उसका जो मेन इशू है या फिर जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, डक्टिलिटी को इंक्रीज करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डक्टिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो कार्बन परसेंटेज जितना कम रखोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, तो जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ कार्बन आता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द कार्बन, जो भी हम लोग मेथड यूज में लेते हैं, तो एक सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्मेट आता है वो होता है राउट आयरन, जिसमें ऑलमोस्ट 0.15 से 0.2 तक कार्बन परसेंटेज रहता है। तो उसमें थोड़ा सा कार्बन और डाल देते हैं सो दैट द स्ट्रेंथ शुड बी मेंटेन्ड एंड दैट only steel is known as your structural steel, okay, and that is having a very high amount of ductility, okay। सर फिर और अलग अलग कार्बन परसेंटेज करेंगे तो क्यों डाला जाता है? देखो यार, एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर कार्बन परसेंटेज थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल हैपन, वो थोड़ा सा डक्टाइल कम हो जाएगा, थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ और आ जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स। मैकेनिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है कि दे एक्चुअली रोटेट एंड दे आर सब्जेक्टेड टू द फटीग लोडिंग्स। सो फॉर फटीग लोडिंग्स, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फटीग लोडिंग के लिए क्या करना होता है, बहुत हाई स्ट्रेंथ चाहिए होगा। ठीक है, और फटीग लोडिंग में इवन डक्टाइल मटेरियल विल फेल लाइक अ ब्रिटल मटेरियल एंड इवन एट अ वेरी लोअर स्ट्रेस कंडीशन। सो दैट्स व्हाई वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हायर कार्बन परसेंटेज का वहां पर कंपोनेंट बनाते हैं। और कहीं पे और जरूरत पड़ती है जहां पर बहुत हार्डनेस की जरूरत होती है, वहां पर हम कार्बन परसेंटेज और इंक्रीज कर देते हैं, और उसको एक तरह से आपने नाम सुना होगा कास्ट आयरन। सो अगर आप 0.8% कार्बन से ऊपर रख देते हो, सो दैट विल बी टर्म्ड इन योर कास्ट आयरन। ठीक है, एक होता आपने सुना होगा लो कार्बन स्टील, एक मीडियम कार्बन स्टील और एक हाई कार्बन स्टील। सो 0.15 टू 0.30 ध्यान में रखिएगा, 0.15% ऑफ कार्बन टू 0.30% ऑफ कार्बन, दिस इज कॉल्ड लो कार्बन स्टील। और यही क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील आपका। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चरल स्टील हो जाएगा। और अगर 0.3% से आप अगर 0.8% या फिर 0.5 तक ही मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, ये 0.5% रखते हो, इसको बोलते हो मीडियम कार्बन स्टील। ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स में यूज में आता है। अगर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स का नाम ले लोगे तो उसमें ये वाला लेकर आना। और 0.5% से लेकर 0.8% कार्बन तक, दिस इज हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये कटिंग टूल्स में काम आता है। ठीक है, कोई ऐसा टूल होता है ना जो कटिंग के लिए काम में आता है, सो जैसे प्लावर, आप प्लाव करते हो ना जिससे, सो उसमें क्या होगा, हाई कार्बन स्टील। वहां पर आप नहीं चाहोगे कि आप एक बार प्लाव करो और आपका जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, पूरा एब्रेशन से भर जाए। एब्रेशन मतलब उस पर स्क्रैच आ जाए, आप नहीं चाहोगे। सो वही तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्डनेस। आप जितना जितना कार्बन परसेंटेज और इंक्रीज करते जाओगे, उसमें स्क्रैच आने का रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा और उसमें स्क्रैच बहुत कम आएगा। ठीक है, सो ये वहां पर यूज में आता है। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कटिंग टूल्स, ये कटिंग टूल्स में यूज आता है। और अगर आप 0.8% कार्बन से भी क्या करते हो, ऊपर करते हो, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज नोन एज कास्ट आयरन। ये पूरा प्रॉपर्टी ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। स्टील में फिर देखो दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, कास्ट आयरन वैसे 0.8% से ऊपर ही नहीं बोलते हैं, वैसे तो कास्ट आयरन 2.1% से ऊपर जाता है, बट बहुत रेयर केस में क्या करते हैं हम 0.8% कार्बन से ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, और ये स्टील का जो रेंज है वो स्टील कहाँ तक वेराई करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज, ये 0.15% ऑफ कार्बन से लेकर 1.5% कार्बन तक, वैसे तो 2.1 तक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दूसरे ब्रांच में देखोगे तो, बट इतना इससे ऊपर नहीं करते, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल हो जाता है और उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इट्स नॉट फर्दर नोन एज स्टील। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि भैया इससे ऊपर तो ऑप्शन कोई टिक करना ही नहीं है, और इससे अगर ऊपर कोई कार्बन परसेंटेज है तो वो बहुत स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए ही क्या किया होगा, बनाया गया होगा। ठीक है, जहां पर डक्टिलिटी बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, कुछ एक और क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, एंड दैट क्वेश्चन वाज, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो सो 1 मार्क्स में इतने तक ही क्वेश्चंस आए थे, अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं इसमें। और 2 मार्क्स में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे हैड
asked was this one. Okay, तो इसमें क्वेश्चंस एक बार रीड करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा. A copper bar of 25 centimeter length is fixed by means of supports at its ends. क्या हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट्स दिया था और ये कॉपर का जो बार है वो बीच में क्या कर दिया उन्होंने प्लेस कर दिया और इसका जो लेंथ था वो था 25 सेंटीमीटर. सपोर्ट्स कैन ईल्ड, उन्होंने बोला कि भैया ये जो सपोर्ट है ना वो क्या कर सकता है, ईल्ड कर सकता है. ठीक है, मतलब वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं है. वन ऑफ द सपोर्ट इज नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड, वो ईल्ड कर सकता है. अच्छा, ईल्ड करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था क्लास में, या फिर कोई वीडियो लेक्चर वाले भी होंगे तो उनको मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर वहां पर डिफॉर्मेशन अलाउ कर रहा है, दिस मीन्स कि आप वहां पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक तरह से आप उसको अलाउएबल में क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. If the temperature of the bar is raised by 100 degrees Celsius, then the stress induced in the bar for alpha C is equal to 20 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Okay, एक यहाँ पे करेक्शन है, वहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. एंड EC यंग्स मॉडुलस दे रखा है 10 to the power 6 kg per centimeter square. ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे यूनिट्स में दे रखा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि ऑप्शंस भी जो उसने पूछे हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड वो भी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे हैं, तो आई डोंट केयर. ठीक है, अब ध्यान में रखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो इसके कंडीशन में क्या है, वो बोल रहा है कि हमारा सपोर्ट क्या कर सकता है, ईल्ड कर सकता है. दिस मींस दिस इज द अलाउएबल डिफॉर्मेशन, इतना ही आप अलाउ कर रहे हो. ठीक है, तो हमने बोला कि भैया, उसने बोला कि मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है. तो मैं तो बोलता हूं कि अगर सपोज कि यहां पर क्या होता, आपका फिक्स सपोर्ट नहीं होता, तो अगर फिक्स सपोर्ट नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन अ फ्री एक्सपांशन. तो मैंने बोला कि बता दो मुझे कि फ्री एक्सपांशन के केस में कितना एक्सपांड हो सकता था करेस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर, व्हाट वुड हैव बीन द नेट एक्सपांशन. सो डेल्टा एल फ्री में फ्री एक्सपांशन कितना हो सकता था. सर पहले तो स्ट्रेन लिख लो, स्ट्रेन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना आंसर आ जाएगा. अल्फा कितना दे रखा है आपको, 20 into 10 to the power minus 6, और टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है 100, और लेंथ कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर. जो यूनिट आप लेंथ की रखोगे वही यूनिट आपका डेल्टा एल फ्री का भी आएगा. और जब यहां से कैलकुलेट किया तो वी हैड कैलकुलेट 0.05 सेंटीमीटर, एंड दैट 0.05 सेंटीमीटर इज एक्चुअली ग्रेटर देन, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन डेल्टा एल अलाउएबल. सर अलाउएबल कितना था, उसने बोला ना सपोर्ट कितने से ईल्ड कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर से. मैं एक बार वापस कंफर्म कर लूं, यस इट इज 0.01 सेंटीमीटर. कितना ही अलाउ कर रहा है, 0.01. बट फ्री में कितना एक्सपांशन हो सकता था, सर 0.05 सेंटीमीटर. बट अगर उसने ईल्ड इतना ही किया है तो फाइनल पोजीशन तो यही होगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन. मतलब फ्री एक्सपांशन से यहां तक दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड लेंथ कि आपने इतना रेस्ट्रिक्ट किया. अब ये रेस्ट्रिक्शन कहां से आएगा, ये आएगा जो यहां पर स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, और ये स्ट्रेस डेवलप होते होते वो यहां तक क्या कर रहा होगा, लगा रहा होगा. सो आपको इसी फॉर्मेट में लिखने का है. ठीक है, आप स्ट्रेस कुछ ऐसा इंड्यूस करवा दो कि उसका जो नेट डिफॉर्मेशन वो क्या कर दे, ये 0.04 कर दे. इस स्ट्रेस की वजह से ही क्या हो गया, 0.04 सेंटीमीटर कम हो गया ना. फाइनली आप देख सकते हो, तो कुछ भी नहीं करना. मैं तो देखो यार बहुत इजीली सॉल्व करता हूं, मैं कोई बुक्स के सॉल्यूशन पे जाता ही नहीं हूं. ठीक है, उसने क्या बोल दिया मुझे 0.04 सेंटीमीटर. तो जरा बताइए कि स्ट्रेस कैसा इंड्यूस करें. आपको पता होगा PL/A, यही क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो P/A को मैं स्ट्रेस लिख सकता हूं, तो स्ट्रेस L/E, ये क्या होना चाहिए, यही तो कितना इंड्यूस होना चाहिए ताकि आपका डेल्टा एल कितना आ जाए, 0.04 सेंटीमीटर. 0.04 सेंटीमीटर. और सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, ध्यान में रखो, सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, सर स्ट्रेन होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है. तो लेंथ का जो यूनिट रखोगे वही यूनिट आपको इधर भी रखना पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप दिस लेंथ इन सेंटीमीटर, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. और यहाँ पर सिग्मा तो आपको कैलकुलेट ही करना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. ई आपको दे रखा है 10 to the power 6, और यहाँ पर आपको दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर. और यहाँ से जब आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो जो यूनिट ई का होगा वही यूनिट किसका हो जाएगा, सिग्मा का भी हो जाएगा. और ऑप्शंस भी उसी फॉर्मेट में दे रखे थे. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको
दूसरे फॉर्मेट में लिख रखा था 16 इंटू 10 टू द पावर 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, किसी भी यूनिट में लिख दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो एक ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एंड इवन दे हैड आस्क्ड दिस फॉर 2 मार्क्स। अगर किसी में थोड़ा सा भी भेजा होगा, किसी ने मेरे वीडियो 1-2 वीडियो भी देख रखे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, बट मैंने वीडियोस में साफ साफ बोला है, वो कुछ भी कंडीशन दे रखा हो, आपको क्या कंसिडर करना है, यू हैव टू जस्ट थिंक about it as a allowable deformation। स्टोरी तो कुछ भी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग में मुझे पता है स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरी नहीं होता है तो आगे देखने से मजा ही नहीं आता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। न्यूमेरिकल आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फॉर 2 marks are, the very first question they had asked is, they had given that a torsion has been applied to a shaft, okay, and that actually results in a 1 degree angle of twist once a length of 1 meter, मतलब हर 1 मीटर में वो कितना डिग्री एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रहा है, 1 डिग्री, उन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। या देखो, या तो वो टाउ मैक्सिमम बोल सकता है या फिर वो टाउ परमिसिबल के नाम से भी दे सकता है, ठीक है। सो दैट हैज बीन गिवन टू यू एज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट इज, दे हैड गिवन यू ऑफ कोर्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओनली। सर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दे हैड गिवन मी यंग्स मॉडुलस? So if they had given you Young's modulus, then they must have given you the Poisson's ratio also, and from that Young's modulus and Poisson's ratio you must consider to find out this G first। फॉर्मूला बताया है, E is equal to 2G 1 plus mu। अब वहाँ से G पहले फाइंड आउट कर लेते और वो यहाँ पर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द शाफ्ट? देखो यार, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने रेडियस ऑफ द शाफ्ट पूछा है कि उसका रेडियस कितना होगा। टॉर्जन है तो टॉर्जन इक्वेशन की पहले बात करते हैं। T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई कैपिटल R। यहाँ पे मैक्स ही होता है, मैंने आपको बताया था, और इधर होता है G थीटा बाई L, ठीक है। अब बात आती है, उसने मैक्सिमम दे रखा है, ये मैक्सिमम है तो R भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ऑफ कोर्स। उसने टाउ दे रखा है और उसने एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है, तो ऑफ कोर्स मैं कौन सा वाला इक्वेशन चूज करूँगा? ना ही मुझे टॉर्क दे रखा है, ना ही मुझे कुछ और भी दे रखा है, मुझे डायमेंशन भी नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस चीज़ को यूज़ में लूँगा। तो यहाँ पे मुझे निकालना है R मैक्स, ठीक है, या फिर R वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ही है, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कुछ लिखूँगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो दैट R विल बी एक्चुअली इक्वल टू, मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर, टाउ मैक्स इंटू L अपॉन G इंटू थीटा। और एक खास ख्याल रखना है कि थीटा को एटलीस्ट किस में रखिएगा, रेडियंस में रखिएगा। ये बहुत गंदा ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है लोगों से, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली में डिग्री में दे रखा है, तो अगर आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम इन रेडियंस, ठीक है। एकदम स्मॉल सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फॉर रेडियंस, या फिर बहुत लोग स्मॉल r से भी बहुत बार कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ टाउ मैक्स कितना दे रखा है उन्होंने, एक चीज़ और, G का जो वैल्यू होता है वो टाउ मैक्स के करस्पॉन्डिंग है। जैसे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, पर mm स्क्वायर में है, तो ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों की यूनिट कैंसल्ड आउट। ये लेंथ है और ये क्या है, थीटा है। जो यूनिट थीटा का, वैसे रेडियंस का कोई यूनिट होता नहीं है, तो बच गया सिर्फ लेंथ। तो लेंथ का जो यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, रेडियस का भी यूनिट होगा। तो अगर आप लेंथ को मीटर में पुट करते हो, सो योर रेडियस विल बी इन मीटर्स ओनली, ओके। बट इसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे वो रेडियस अकॉर्डिंग टू mm दे रखा था। सो यू मस्ट पुट योर लेंथ इन mm। तो ये क्वेश्चन अगर आप मीटर में भी पुट कर दोगे ना, तो वो डेसिमल का फर्क आ जाएगा। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000 ओनली, ओके। 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm होते हैं। सो ट्राई टू कीप दिस mm इन मीटर इन mm, ओके। तो वैल्यूज कुछ इस टाइप से आपको पुट करनी थी। टाउ मैक्स आपको दे रखा है 120 इंटू कुछ भी नहीं है, L कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 अपॉन G कितना दे रखा है आपको 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5, और थीटा आपको यूज़ में लेना था ये पाई अपॉन 180, क्या हो जाएगा 180 ऊपर चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली योर आंसर विल बिकम 270 बाई पाई, एंड दिस विल बी इन mm। ध्यान में रखिएगा, ये जो आंसर आया है ये आया है mm में, और अगर आपने मीटर में रख लिया होता तो योर आंसर शुड हैव बीन 0.27 अपॉन पाई, और वहाँ से आइडिया लग जाता है कि यस द ऑप्शंस आर एक्चुअली गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ mm।
ओके, सो बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्या किया है, बता दिया है. नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉम, एंड वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन द 1 मार्क्स ऑल्सो, द सेम क्वेश्चन विद द सेम डेटा विद द सेम लैंग्वेज. ओके, द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. सो ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक तरह से 3 मार्क्स का हो गया. अगर किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उसको 3 मार्क्स तो डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने का है. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछा है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट उन्होंने यही एक क्वेश्चन है जिसमें कॉलम और बेंडिंग को उन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है, तो वो मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो द क्वेश्चन इज लाइक शॉर्ट कॉलम. सबसे पहले तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि वो शॉर्ट कॉलम बोल रहा है, और मैंने शॉर्ट कॉलम में आपको बताया भी था कि शॉर्ट कॉलम का मतलब क्या होता है, उसमें बेंडिंग बहुत मुश्किल से होता है. और शॉर्ट कॉलम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सपोर्ट्स है ना वो बाय डिफॉल्ट आपको फिक्स्ड कंसिडर करने हैं. ठीक है, अगर लॉन्ग कॉलम होता है तो मैंने आपको बोला था कि सिंपली सपोर्टेड आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो सब वीडियो लेक्चर में बता रखा है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा. अ शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर्स कैपिटल D एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल d इज सब्जेक्टेड टू अ लोड W. उन्होंने बोला कि एक W लोड लगाया है विथ एन इसेंट्रिसिटी E. उन्होंने पहले ही देखो एक लोड लगा रखा है विथ इसेंट्रिसिटी E. सर इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत डिटेल में मैंने इसकी थ्योरी क्या की थी, कवर की थी. causing zero stress at an extreme fiber, okay, then the value of E must be. देखो मैं एक बहुत नॉर्मल सा आपको क्या बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, एक स्ट्रेस लगाते हो और आपने मान लो इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करी है. ठीक है, आपने एकदम क्या किया, बीचों बीच, मैं एकदम बता रहा हूँ, जैसे ये एकदम सेंट्रल पोर्शन है इसका, आपने अगर बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन पे ही क्या लगाया है, W लगाया है, सो देयर विल नॉट बी एनी इसेंट्रिसिटी. आपने यहाँ पे भी W लगाया है और यहाँ एकदम बीचों बीच आपने क्या किया, इसेंट्रिसिटी, विदाउट इसेंट्रिसिटी आपने लोड लगाया. तो व्हाट विल हैपन कि एक सर्टेन लोड के बाद इसमें क्या होगा, एक ऐसा बकलिंग होगा. देखो ये ऐसा फाइनली शेप होगा ऐसे बकलिंग का. ठीक है, बहुत कम होगा, एकदम माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में होगा, बट होगा ज़रूर. ठीक है, तो शेप कुछ हो जाएगा ऐसा. तो जैसे ही ऐसा शेप हुआ तो ये जो एक एक्सट्रीम फाइबर ये हुआ, दूसरा एक्सट्रीम फाइबर ये हुआ. सपोज अगर ऐसा बकल हो जाता है, ठीक है, इस लोड को लगाने के बाद सपोज कुछ ऐसा बकल हो जाता है, तो व्हाट हैपन कि ये जो एक्सट्रीम फाइबर है दैट विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन, और ये वाला जो एक्सट्रीम फाइबर है दैट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन. सो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. ये क्या हुआ, एक तरह से इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, बेंड हुआ है. तो एक चीज़ ध्यान में रखो, इसका जो एक्चुअल में जो रीज़न बन रहा है वो ध्यान में रखो, वो क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है. इधर टेंशन में है, टेंशन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, सो दिस प्लस एंड दिस विल बी सिमिलर केस में यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस. ठीक है, तो ये तो एक सबसे पहले आपका केस बनता है. ये बेंडिंग का डायग्राम, कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम होती है. तो ये तो देखो बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया, इस वजह से ये बेंडिंग का डायग्राम आया है. बेंडिंग स्ट्रेसेस में बता सकता हूँ इसको ऐसे. ठीक है, तो इसमें उसने ऐसा कुछ बोला कि यार देखो यार तुम कुछ ऐसा करो कि ये पॉजिटिव आए ही ना. ठीक है, ये पॉजिटिव आए ही ना, मतलब कोई टेंशन उसके अंदर इंड्यूस ही ना हो. ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज देखो यार कॉलम्स को जनरली है ना कंप्रेसिव लोड्स को बियर करने को बनाया जाता है. एंड टू बियर कंप्रेसिव लोड यू विल मेक योर मटीरियल डक्टाइल, एंड इफ यू विल मेक योर मटीरियल मेक योर मटीरियल ब्रिटल. सो इफ यू आर मेकिंग योर मटीरियल ब्रिटल, देन व्हाट विल हैपन, ब्रिटल मटीरियल आर एक्चुअली फेलिंग थ्रू टेंशन. सबसे वीकेस्ट होता है टेंशन में वो. सो इसलिए आप चाहोगे कि यार थोड़ा सा भी आपका जो कॉलम है उसमें थोड़ा सा भी टेंशन इंड्यूस ही ना हो. सो फॉर दैट आप क्या करोगे, आप जो अपना लोड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यू विल डिस्ट्रीब्यूट दैट लोड एट सर्टेन इसेंट्रिसिटी. आप एग्जैक्टली बीचों बीच ना लगाकर आप थोड़ा क्या करोगे, साइड में लोड लगाओगे, या फिर जो इफेक्टिव लोड एक्ट कर रहा है वो इफेक्टिवली यहाँ पर एक्ट करवाओगे, ना कि बीचों बीच. सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, एंड अपोजिट बेंडिंग स्ट्रेस विल डेवलप. और एक तरह से मैं आपको नॉर्मली बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी ये W क्या किया है, आपने यहाँ पे लगाया है, तो वो W क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा. सो आपको W इस हिसाब से लगाना है अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी, कि ये क्या हो जाए एकदम उसी हिसाब से. जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना टेंशन है, आप एग्जैक्टली इतना ही का क्या कर लोगे, आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दोगे. एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस का जो
वेरिएशन होता है वो होता है कुछ ऐसा, हर जगह हर क्रॉस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और जब आप फाइनली इसको ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो व्हाट यू विल सी दैट ये जो पोर्शन था, जितना ये ऊपर में प्लस जा रहा है उतना ही ये क्या आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। और जब आप इफेक्टिवली इसका ड्रॉ करोगे ना, सो व्हाट विल हैपन, इफेक्टिवली जब आप इसका बेंडिंग डायग्राम या फिर जो स्ट्रेस डायग्राम है वो ड्रॉ करोगे तो एट दिस एक्सट्रीम फाइबर यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी जीरो हो जाएंगी। और देखो ये भी उसी डायरेक्शन में है, ये भी उसी डायरेक्शन में, सो दिस विल गेट एड अप और ये बिल्कुल ऐसा ही वेरिएशन होगा। और इसके अंदर जो आज क्रॉस सेक्शन पे आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा वेरिएशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दैट विल बी इफेक्टिव। और ये टोटली क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में ही होगा। नेगेटिव मतलब आपका आज पूरा का पूरा जो ये कॉलम है वो क्या हो जाएगा, इट इज इन प्योरली इन कंप्रेशन। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक इसेंट्रिसिटी पे देते हैं ताकि क्या हो जाए कि भाई ये जो आपका जो ये पॉजिटिव वाला जो ये सेक्शन है ना, ये इंड्यूस ही ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने और डिटेल में, देखो यार उसमें और ज़्यादा डायग्राम से बता रखा है उस वीडियोस में, तो अभी मैं इसको इतना तक ही रेस्ट्रिक्ट रखता हूँ। तो ध्यान में रखिए कि आप जो भी स्ट्रेस इंड्यूस करवाओगे विथ रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी, मैं नॉर्मली बताना चाह रहा हूँ स्ट्रेस कितना, उसने W लगाया है, सो इट विल बी सिंपली W बाई एरिया एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन, जो भी आपने क्या किया है उस बेंडिंग की वजह से, आपने जो इसेंट्रिसिटी दी है उसके वजह से क्या आएगा, एक बेंडिंग आएगा, ठीक है। अगर आप इसको, अगर मान लो कोई स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है तो आप इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आता है प्लस एक इसका क्या आ जाएगा, मोमेंट भी आएगा। सो दैट मोमेंट विल एक्चुअली काउंटर, ओके। सो ये मोमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर ही मैं डाल रहा हूँ। और मोमेंट को कैसे लिखोगे, My बाई आई या फिर M बाई जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा इसेंट्रिसिटी के वजह से, ध्यान में रखना ये किसके वजह से है, इसेंट्रिसिटी के वजह से है। वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली या तो बराबर होना चाहिए वॉट एवर द लोड यू हैड अप्लाइड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ये नहीं कि इसेंट्रिसिटी पहले इतना ज़्यादा डाल दिया कि यार उस पर लगाने के बाद भी क्या हो रहा है, वो उल्टा क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लेसर रख रखा है, ठीक है। और अब ध्यान में रखो ये W बाई ए है, M कितना हो जाएगा, दिस विल बी W इंटू ई। अगर आपने यहाँ पे लगाया होगा तो W इंटू ई ही क्या हो जाएगा आपका, इसेंट्री, ये मोमेंट हो जाएगा W इंटू ई है, ये नहीं कि V समझ लिया उसको, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू वाई और ये हो जाएगा बाई आई। अच्छा y कितना हो जाएगा, चलो जो भी है आगे देखते हैं। W से W आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसेंट्रिसिटी। सो दैट इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन, इधर हो जाएगा I और नीचे हो जाएगा एरिया और इधर नीचे और क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ये, ठीक है। ये मैंने बताया था। और अलग अलग शेप्स के लिए, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, उन्होंने जो शेप दे रखा है वो शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर, एक्चुअली उन्होंने हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम दे रखा है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया था कि हॉलो बनाने से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये चीज़ भी मैंने क्या कर दिया था, इवन मैंने टॉर्जन में भी डिस्कस किया था और इवन मैंने कॉलम्स में भी क्या कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। और जब मैंने बेसिक्स बताए थे आपको किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तब भी मैंने ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया था कि यह क्या होगा, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PGCET, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा इसको कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करने का है। I कितना हो जाएगा, हॉलो दे रखा है, उसने आउटर डाया दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, यस एक्सटर्नल डाया उसने D दे रखा है और इंटरनल डाया उसने स्मॉल d दे रखा है। तो सिंपली I कितना हो जाएगा आपका, सर पाई बाई 64 कैपिटल D पे पावर 4 माइनस स्मॉल d पे पावर 4 अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। और जो y होता है, y क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस होगा टू एक्सट्रीम फाइबर, सो दैट डिस्टेंस विल बी कैपिटल D बाई 2। सो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल D बाई 2। सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे कटेगा, ये कटेगा 16 टाइम्स। और क्या मैं इस पूरे को
मैं d पे पावर 4 माइनस d पे पावर 4 स्मॉल d पे पावर 4, मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ। तो d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर और d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो फाइनल रिलेशन आपका आने वाला है वो आपका आ जाएगा, देखो यहाँ से बचेगा d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर बचने वाला है ये 16 है, और 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल करोगे इट विल बिकम 8, और नीचे आपका आ जाएगा 8 इंटू कैपिटल D, ठीक है। और यही ऑप्शन आपका क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था। सो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो लेस देन लगा लो या फिर इक्वेट करके भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत डिटेल में क्या किया था, कवर किया था। और इवन सिर्फ ये आपका हॉलो सिलिंड्रिकल के लिए भी नहीं, स्क्वायर डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, सारे शेप्स के लिए मैंने क्या किया है, इसमें कवर किया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक डायरेक्ट आपको परसेंटेज भी याद रखने को बताया था कि आप बस वो परसेंटेज याद रखिए एंड दैट टू विल बी योर आंसर, ठीक है। तो वो यहाँ से भी अगर आपको वो परसेंटेज भी किसी को याद होगा हॉलो वाले, तो आप यहाँ पे कर लोगे, उसको पुट करके आप डायरेक्टली एस्टिमेट भी कर सकते हो अगर कोई डिराइव भी नहीं कर पा रहा है, तो वो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FM पेपर एनालिसिस। So as I see the paper of this PGCET 2019, so talking with respect to fluid mechanics, there was one question from the viscous flow and one question was from the fluid kinematics. There were two questions from the flow through pipes. One was of 1 marks question and the another was of 2 marks question. And losses in pipes, there was one question related to it. And from the open channel flow, there was 2 questions and both questions were of the 2 marks questions. Okay, so if I can talk about the level of questions, it was the very easiest subject from where the questions has been asked. Even a zero effort questions, you just need to read the basics, nothing else, okay, and just the formula you need to remember, nothing else, okay. So I'm just giving you all those questions from where these questions are asked. So the very first question I can tell you, question number 1 that has been asked was, the discharge of a liquid of kinematic viscosity 8 centimeter square per second through a 8 centimeter diameter pipe is 3200 pi centimeter cube per second. They had given you discharge and that is 3200 pi, it is given in centimeter cube per second, and viscosity, and though they have mentioned the kinematic viscosity, okay, so it is nu, it's not mu, it's nu, okay. So it is 8 centimeter square per second and the diameter of pipe they had given is 8 centimeter, and they told you that what is the kind of flow it is. It is turbulent, it is in transition, it is highly turbulent, or it is laminar. So as it is a case of pipe, okay, so in case of pipe, the critical Reynolds number, if I should tell you, I already told you in the video that the critical Reynolds number in case of pipes, it is defined by 2300, and even somewhere else they mention 2000, okay. So from 2000 to 4000 it is a transition zone, less than 2000 it is in the laminar region, and greater than 4000 it is the turbulent region, and if the values are very very high then they are highly turbulent. So you just need to check what is the value of the Reynolds number and just you need to find out. So Reynolds number in the format of kinematic viscosity is defined by Vd upon nu, okay. We don't know about the velocity, but we can calculate this velocity. Velocity is nothing, discharge upon area. So discharge, it has already been given to you 3200 pi upon area. Area is defined by pi by 4 d square, so it will be 8 square into diameter. Diameter already given 8 and divided by kinematic viscosity, and kinematic viscosity has been given to you as 8 centimeter square per second. So there is no any need to even write the units because all are in the centimeter and seconds only, so they will get cancelled with each other, okay. So after calculating you are getting the value of this one, okay. So as you can see from here only, it is 8 into 4 will be multiplied in the numerator,
from 1/8 to this 1/8 it will get cancelled out and it will be divided by 64. Okay, 32 into 2 64 and the answer will be 200. Okay, so this Reynolds number is actually less than 2000 and even it is very less laminar too. Okay, this means purely laminar, very viscous flow. Okay, so what will be your answer? So simply the flow given to you is purely laminar. Okay, you can say like this. Okay, you can say like it is laminar, you can say like it is a viscous flow. Okay, next question they are asking is the flow of a liquid at constant rate in a conically tapered pipe is classified as. कोनिकली टैपर्ड, देखो यार ये कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी मैंने क्या किया, इसको काइनेमेटिक्स में इंक्लूड किया है बिकॉज काइनेमेटिक्स में मैंने क्या किया था, बहुत सारे फ्लोज को मैंने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो प्रॉपर काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ नेसेसरी नहीं है, मतलब इतना घटिया पेपर आ रखा है, मतलब थूक के क्वेश्चन कर सकते हो तुम. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो. उसने नॉर्मली बोला है कि एक कोनिकल पाइप है और इसने बोला है कि इसके अंदर से जो फ्लो जा रहा है ना वो क्या है, कांस्टेंट रेट से जा रहा है. दिस मीन्स योर मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट. इफ योर मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट देन योर मास इन विल बी इक्वल टू मास आउट एंड योर फ्लो विल बी स्टेडी. सो इससे तो समझ में आता है कि जो मास फ्लो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट रेट का है. स्टेडी किससे डिफाइन करते हैं सर? स्टेडी इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. And the next option they had mentioned is whether the flow is uniform or non-uniform. Uniformity and non-uniformity is actually defined with respect to space. Okay, and with respect to space, if I will talk you about that, what will be the velocity here, what will be the velocity here, what will be the velocity here. So because the diameter is decreasing, so your velocity must increase. That is, at each and every cross sections your velocities are varying. So if the velocities are varying, then it's not a property which is constant with respect to space. Okay, so it is of course by default a non-uniform flow. By default you can say that it is a non-uniform flow because at each and every cross section it is different having velocity. Okay, सो ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें प्रेशराइज करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है. और मैं कुछ क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड यू दैट 2 रिजर्वायर्स एट डिफरेंट लेवल्स आर कनेक्टेड बाय 2 पैरेलल पाइप्स. Okay, they had given you the parallel pipes of diameter 2d and small d. The ratio of the flow in the 2 pipes, they are asking the ratio, the larger diameter pipe discharge upon lower diameter pipe discharge. Okay, so what happens in case of parallel flow? I already told you that the head loss remains same. Okay, so for both these pipes, the third question I am telling you, the head loss in both these pipes, ये सबसे पहले मैं लार्जर डाया के लिए बता देता हूँ, और हेड लॉस चाहे वो हो स्मॉलर डाया पाइप, दोनों के लिए हेड लॉस क्या होगा, बराबर होगा. दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है. ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे मेरे वीडियोस में उसमें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सर, मुझे पता है, और आपने 2-3-4 और ट्रिक भी बताए थे कि अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाए तो सिंपली वो कॉन्सेप्ट यूज़ में ले लेना. डायरेक्ट वन लाइनर क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट बन के रह जाता है. सो इसमें भी मैं वही काम करूँगा. ठीक है, कहीं के सॉल्यूशन में नहीं जाऊँगा, मैं अपने हिसाब से सॉल्यूशन दे रहा हूँ. ठीक है, द रेशियो ऑफ द फ्लोज इन द 2 पाइप्स इज, उन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ द फ्लोज, दिस मीन्स दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज. सो व्हाट आई नीड टू राइट द आंसर इज दैट आई विल ट्राई टू राइट माई हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ discharge, and for the head loss in terms of discharge I already told you that the formula is FL Q square upon 12.1 d to the power 5. So if it is larger you can tell that this is QL, this is DL, and rest all the factors remain same because nothing has been mentioned in the question. So you have to assume all those other variables as a constant. Okay, otherwise you will not be able to find out the ratios. Okay, this should be kept in your mind. It's a normal aptitude. Okay, so now FL this will be QS square upon DS square, और आगे मैं 12.1 भी लिख देता हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उसको डिस्चार्ज के फॉर्मेट में लिख दिया. FL से FL कैंसिल, 12.1 से ये चीज़ कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल हो गया. और उसने बोला है डिस्चार्ज लार्जर अपॉन स्मॉलर, तो देखो लार्जर ये है, स्मॉलर इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ. सो इट विल बी QL अपॉन QS
whole square and this will become diameter of the larger upon diameter of smaller one to the power 5. The larger diameter is 2d. Okay, so 2d upon d, it will be 2 to the power 5, it will be 32. And you need to find out the ratio between the larger upon smaller discharge. So you just need to take this to this side and it will become a kind of root. So if you are removing this square, this will become root, and you can write this 32 as 16 into 2, and 16 is a root of 4, so simply it will become 4 root 2. Okay, so 4 root 2 upon 1. So that was the only option, one of the option mentioned in your question. Okay, so बहुत easy question था, कुछ भी नहीं, one liner question है ये, ठीक है. This was asked here, flow through pipes. Okay, next again the next question they are asking from the losses. Let's see, the diameter of a circular pipe suddenly increases by 2 times. उन्होंने क्या बोला, सडनली इंक्रीज. तो दिमाग में वैसे ही आ जाता है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा ना, उन्होंने जस्ट डायरेक्टली दिमाग में वही आ जाएगा, सडन इंक्रीमेंट ये सडन एक्सपांशन लॉस पे चले जाएंगे. ठीक है, द रेशियो ऑफ द लॉसेज ऑफ एनर्जी टू द वेलोसिटी हेड बिफोर एक्सपांशन इज. उन्होंने पूछा क्या, द रेशियो ऑफ. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये एक टाइप का अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, बट अगर किसी में थोड़ा सा भी भेजा है और उसमें थोड़ा सा भी पढ़ने की शक्ति है तो एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा. कैसे, मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं वापस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ. द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाइप सडनली इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स. ओके, एंड दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी, रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी टू द वेलोसिटी हेड बिफोर एक्सपांशन. ओके, सो मैं बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूँ. मेरे सारे बच्चों को पता होगा, ये रहा आपका, मान लो सडन इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, सडन इंक्रीमेंट हुआ है और कितना इंक्रीमेंट किया है कुछ पता है क्या, इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स. द डायमीटर इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स. तो अगर यहाँ पर ये d है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सडनली 2d हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने ऐसे भी उनको बोला था कि देखो यार, अगर तुम यहाँ पर क्या मानते हो, सपोज तुम अगर यहाँ पर वेलोसिटी v मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 4v होगी, क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना. सो एरिया अगर मान लो ये क्या हो गया, मान लो डायमीटर 2 टाइम्स है तो एरिया कितना हो जाएगा, इट इज 5/4 d स्क्वायर. एरिया एक्चुअली वेराइज विथ रिस्पेक्ट टू d स्क्वायर. सो इफ डायमीटर इज ट्वाइस देन एरिया विल बी 4 टाइम्स. ओके, एंड इफ एरिया इज 4 टाइम्स देन वेलोसिटी विल बी 1/4 times. So either it's all upon you, you can write like v and v/4, it's all upon you. तुमको ऐसे नहीं लिखने का है तो मैं ऐसे भी लिख के तुमको बता सकता हूँ. ये हो गया v, तो इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v/4. इट्स दैट मच सिंपल. ओके, तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी हेड, इनिशियल वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा, हेड के फॉर्मेट में क्या करना है आपको, वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, दैट इज v²/2g. दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ हेड. ओके, और यहाँ पर लॉसेस कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था कि देखो यार, लॉसेस उतने होंगे, दोनों का जो वेलोसिटी है उनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस का स्क्वायर करने का है. ठीक है, सो द लॉस विल बी v माइनस v/4. दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर करके क्या करना है, ये हेड के फॉर्मेट में. दिस इज द हेड लॉस. ठीक है, बिकॉज ऑफ सडन एक्सपांशन. ठीक है, सो और इसका रेशियो किसके साथ लेना था, उन्होंने बोला था कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हेड बिफोर एक्सपांशन. बिफोर एक्सपांशन में वेलोसिटी हेड कितना था, v²/2g. उन्होंने सिंपली बस इतना पूछा था. अब बताओ इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ने का दे रहा है, थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, थोड़ा सोचने में टाइम लगाते हैं, और बुक्स में देखोगे तो फालतू में 10 लाइन का आंसर दे रखा है. पहले तो वो कैलकुलेट करेंगे, फिर बर्नौलीज लगाएंगे, फिर वो करेंगे. करने का ज़रूरत ही नहीं है. अगर थोड़ा सा भी खोपड़ा है मेरे बच्चों में तो तुरंत क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, v माइनस v/4, इट विल बी 3v/4. स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 9v²/4 अपॉन v² कितना हो गया, डायरेक्टली आंसर इट विल बी 9/4. कुछ रहा क्या, एक मिनट, 9/16 है ना, 4 है नीचे तो इसको 16 कर लो. ठीक है, इसको 16 कर लो, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे इट विल बिकम 16. ठीक है, तो ये चीज़ क्या करना है, बस आपको ध्यान में रखने का है. नाउ और क्या रह गया है, और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं मैं एक बार देख लेता हूँ. इसमें तो और इधर से कुछ नहीं आया, ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं. और अगर मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, एंड दैट इज़ कंसिडर अ स्टेडी फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो. देखो सबसे पहले तो उसने टर्बुलेंट फ्लो बोल दिया है इन अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. टर्बुलेंट फ्लो सुनते ही लौंडे रोने लग जाते हैं कि सर टर्बुलेंट पूछ लिया, टर्बुलेंट पूछ लिया. ठीक है, लेकिन रोने का नहीं है. ठीक है,
ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दे रखा है एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ यार, रेनॉल्ड्स नंबर हाई होगा तभी तो वो क्या है, टर्बुलेंट है। इफ द पाइप डायमीटर इज डबल्ड एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट, बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर कोई छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं कभी छोड़ेंगे, वो खा जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने उनको पहले ही बोला था कि देखो टर्बुलेंट बोल के तुम्हें बहुत डराएगा। ठीक है, टर्बुलेंट देखकर डरने का नहीं है। मैंने उनको 2 फार्मूला बताए थे और दोनों का मैंने कंडीशन बताया था, और उनमें से एक फार्मूला था FL_V²/2GD। ठीक है, ये हेड लॉस के टर्म्स में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि दिस फार्मूला इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट। तो अगर वो प्रेशर ड्रॉप पूछ रहा है तो मैंने बोला कि यार प्रेशर ड्रॉप क्या है, तुम प्रेशर को तो हेड के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, सो दैट विल बिकम हेड लॉस। अगर तुम्हें हेड लॉस पता है टर्बुलेंट के केस में तो तुम उसको प्रेशर ड्रॉप बना लो। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप कैसे बनाएंगे? प्रेशर ड्रॉप बनाने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, मेरे लॉन्डो को पता होगा कि कैसे क्या करना है इसको। मैंने बस इतना ही बोला है, यहाँ पे क्या कर दो, रोजी से मल्टीप्लाई कर दो बस। हेड लॉस क्या होता है? हेड लॉस इज एक्चुअली डेल्टा पी अपॉन रोजी, यही तो हेड के फॉर्मेट में आ गया, और मुझे डेल्टा पी चाहिए, दैट इज डेल्टा पी लॉस। ये हेड लॉस था ना, सो दैट विल बी डेल्टा पी लॉस अपॉन रोजी। तो मैंने क्या बोला कि देखो यार, रोजी क्या कर दो, इधर से हटा दो और रोजी इधर डाल दो, कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। एकदम एक लाइन में कैसे ट्रिकी से क्वेश्चन करना है वो मैं ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, सो ध्यान में रखो, दैट विल बिकम प्रेशर लॉस, और ये तुम्हारा फाइनली फॉर्मूला बन गया। बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे हैड गिवन दैट इट इज फॉर अ कांस्टेंट फ्लो रेट। दिस मीन्स दे आर नॉट सेइंग दैट इट इज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दे आर टेलिंग दैट इट इज एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट। सो यू विल try to make your equation in the format of डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। v को क्या कर दो, Q/A लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ से v को हटा रहा हूँ, बस v को बस मैं क्या कर दे रहा हूँ, Q/A लिख रहा हूँ। ठीक है, और डायमीटर है तो इट विल बिकम Q/A। एरिया कितना है, π/4 d², v² था तो इस पूरे टर्म का क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, वापस से वही पूछा है, इफ द पाइप डायमीटर इज डबल्ड एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट बाय हाउ मच द प्रेशर ड्रॉप विल डिक्रीज। तो इसमें रिलेशन पूछा है कि भैया बताओ अगर मैं डायमीटर को चेंज करता हूं तो प्रेशर ड्रॉप में क्या फर्क आएगा। तो इट इज जस्ट लाइक यू नीड टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ड्रॉप एंड द डायमीटर। तो मैं अगर प्रेशर लॉस और डायमीटर के बीच में अगर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको क्या रख दूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डिफाइन माई ऑल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इन सबको क्या किया, कांस्टेंट माना। देखो ये 2g, ρg और ये q भी क्या है, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। डायमीटर, तो डायमीटर को तो मैं वैसे भी क्या कर सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, ये π/4 को भी क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। ये d² का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, d⁵, और यहाँ पर क्या है, ये d है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने है ना फ्रिक्शन फैक्टर को भी कांस्टेंट मान लिया है। अब मेरे लौंडे बोल रहे होंगे कि सर अच्छा किया, उसको पता कांस्टेंट क्यों माना, कांस्टेंट इसलिए माना क्योंकि ये फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है। अगर लैमिनार होता तो दिस फ्रिक्शन फैक्टर वुड आल्सो हैव बीन द फंक्शन ऑफ डायमीटर, और मैं नहीं काटता। और यहीं पे क्या करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 99% लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और वो मैंने बहुत स्वीटली वीडियोस में एक बार क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, तो बस उसको देखने की देरी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखो टर्बुलेंट है इसलिए कांस्टेंट रखा है, अगर लैमिनार रहता तो नहीं करता, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, अगर स्मूथ सरफेस है तो रेनॉल्ड्स नंबर, और अगर आपका रफ सरफेस है तो इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव रफनेस। ठीक है, अब यहाँ पे उसका कोई लेना देना अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं होगा, और अगर डिपेंडेंसी सिर्फ डायमीटर पे बोला है तो डायमीटर पे ही सोचने का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, डेल्टा पी लॉस कितना हो जाएगा जरा बता सकते हैं आप, सर इट विल बी, ये d² का होल स्क्वायर d⁴ और नीचे एक और d है, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, बाकी जितने कांस्टेंट है दुनिया गवाह है, जब जब कांस्टेंट हटाया है प्रोपोर्शनैलिटी आया है। ठीक है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁵। और उसने बोला है कि अगर मैंने डायमीटर को 2d कर दिया है तो 2d का पावर 5 कितना हो जाएगा, सर इट विल बी 32d⁵। दिस मीन्स कि इसका जो प्रेशर लॉस है वो क्या हो जाएगा,
आपका 32 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए ये जो नया जो आपका डेल्टा पी लॉस है, ठीक है, अपॉन डेल्टा पी लॉस वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, रेशियो ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका d टू दी पावर 5 अपॉन d डैश टू दी पावर 5। शुरू का d टू दी पावर 5 है और नीचे क्या हो जाएगा, आपने डायमीटर क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। आंसर बता दिया है, बस मैथमेटिकली आपको रिलेशन बता दे रहा हूँ। इट विल बिकम 32 d टू दी पावर 5। ये नहीं कि बस आगे 2 लगा दिया 2e, ऐसे नहीं करने का। अंदर में d डैश किसके बराबर है, 2d के बराबर। ध्यान में रखो d डैश किसके बराबर है, 2d के बराबर, और 2d का स्क्वायर करोगे तो 2 का पावर 5 32 और d पे पावर 5 d टू द पावर 5, ये कैंसल आउट। योर आंसर विल बी 1 अपॉन 32। सो यस ऑफ कोर्स डेल्टा पी लॉस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 32, तो इट विल गेट डिक्रीज, बट उसने डिक्रीज के फॉर्मेट में पूछा है तो दैट आंसर विल बी 32। सो आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इजी आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की देरी है और कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं 19 पेपर का एनालिसिस करूं तो सॉम और एफएम दोनों बहुत हाई वेटेज में आए थे और 2 क्वेश्चन ओपन चैनल के हैं। द नेक्स्ट सर विल डिस्कस द बोथ द क्वेश्चंस। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 10 मार्क्स ये, सॉम का 16 मार्क्स, 26 मार्क्स इज फ्रॉम एफएम एंड सॉम ओनली इन योर होल 100 मार्क्स पेपर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स।